مجھ کو لوگوں سے پتا چلا کہ اس لڑکی کو دہیج کی لالچ میں جلا کر مارنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر بدنصیب بچ گئی۔ میں اجازت لے کر اس کے پاس گیا۔ میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ وہ سفید چادر میں لپٹی بے بس سی اسپتال کے بستر پہ پڑی تھی۔ دوستو، یہ میری کہانی ہے۔ میرا نام اننیا ہے۔ دہیج کے چلتے لوگوں نے ہمیں جلا کر مارنے کی کوشش کی۔ آئیے آپ کو روبرو کرواتے ہیں۔ اس کی زلفیں ہمیشہ لہراتی رہتی تھیں۔ جب وہ چلتی تھی تو آہ کیا بات ہے، لوگوں کے دلوں سے یہی نکلتا تھا۔ اس کی زلفیں ہمیشہ اس کے بائیں کندھے سے ہوتے ہوئے اس کے سینے پہ ایک طرف پھیلی رہتی تھیں۔ جب وہ دور سے چل کے آتی تھی تو سب کی نظر اس کی زلفوں پہ ہی ٹکی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پرانے زمانے کی کوئی گنیکا چلی آ رہی ہو، یا جیسے سورگ سے کوئی اپسرا آ رہی ہو اپنی زلفوں کو لہراتے ہوئے۔ اس کی مسکراہٹ سے ہی لوگ گھائل ہو جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کچھ رہتا تھا، مگر وہ بولتی بہت کم تھی، صرف مسکرا کے اپنا کام کر جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ہنستی بھی تھی۔ اس وقت ایسا لگتا تھا ضرور کسی نے اس سے کچھ کہا ہے، ضرور کوئی اس کے حسن سے گھائل ہوا ہے، جس کی بات وہ اپنی سہیلیوں سے کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک نشہ سا چھایا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے شراب چھلک رہی ہو اور وہ خود نشے میں جھوم رہی ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو، اس کی چال میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ہمیشہ اسی مدمست چال سے چلا کرتی تھی، جیسے اسے کسی بات کی فکر نہ ہو، اور ہو بھی کیوں، اوپر والے نے حسن کے ساتھ اتنی تو ترجیح دی ہی ہے کہ اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ خود اس کے پاس کھینچے چلے آئیں گے۔ اسی لیے تو ابلا ناری کہلانے والی یہ حسن کی پریاں اپنی زندگی اپنے حسن کے سہارے آرام سے جی لیتی ہیں۔ ان کے حسن کی کوئی قیمت تو ہوتی نہیں ہے، جیسا قدردان اتنا مہربان۔ وہ تو پھر بھی آج کے زمانے کا حسن تھی۔ آفس میں نوکری کرتی تھی، مگر اسے دیکھ کے کبھی نہیں لگتا تھا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہوگی۔ لوگ ہمیشہ اس کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جس کو پتا ہوتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ ارے اس کی تو شادی ہو چکی ہے۔ پھر لوگ اپنے اپنے دلوں پہ پتھر رکھ لیتے تھے، من محسوس کر رہ جاتے تھے۔ کچھ سرفرے پھر بھی نہیں مانتے تھے، اسے گھورتے رہتے تھے، مگر اس لڑکی کو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اور پڑے بھی کیوں، اس کی کیا غلطی تھی اگر وہ اتنی خوبصورت تھی؟ اس کی کیا غلطی تھی جو اس کی زلفیں لہراتی رہتی تھیں؟ اس میں کیا برائی تھی اگر وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی؟ کیا برا تھا جو وہ ہمیشہ خوش رہتی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن ایک بات تھی، اس کی لہراتی زلفوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے دلوں پہ سانپ لوٹ جاتا تھا۔ بہتوں کے دلوں پہ اس لیے کہ وہ ان کی نہیں تھی، بہتوں کے دلوں پہ اس لیے کہ وہ بہت خوبصورت تھی مگر انہیں گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ بہت سے لوگ اب بھی اس کوشش میں لگے تھے کہ کاش یہ ہم سے دوستی کر لیتی تو بہت اچھا رہتا، کاش یہ ہمیں اپنے قریب آنے دیتی تو اچھا رہتا، اور کاش اسے ہم چھو سکتے۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے سپنے سجائے، مگر کسی کے سپنے پورے نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک سپنا نہیں تھی، وہ ایک حقیقت تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ حقیقت میں بھی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ یہی ایک چیز تھی جو اس کے پاس بیش قیمتی تھی، باقی سب تو ویسا ہی تھا جیسا سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک پتی، ایک ساس، ایک سسر، ایک دیور، ایک نند، اور سب کچھ ویسا ہی جیسا سب کے پاس ہوتا ہے۔ ایک سادھارن سی زندگی تھی اس کی بھی، مگر اسے دیکھ کے ایسا لگتا تھا جیسے اس نے دوبارہ جنم لیا ہو، اور پچھلے جنم میں ضرور کسی راج گھرانے میں پیدا ہوئی رہی ہوگی۔ لوگ طرح طرح کے خیال بناتے اور بگاڑتے رہتے تھے۔ کوئی کہتا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، دیکھو کیسے چلتی ہے، تو یہی بات کسی کسی کے دل کو اتنی بھا جاتی تھی کہ وہ کہتا تھا واہ کیا مست چال ہے، ہم تو فدا ہو گئے، جی کرتا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنا دل رکھ دیں، اور یہ حسن ایک بار ہمارے دل پہ اپنے قدم رکھ دے، اور ہم مر جائیں اور دنیا وہیں ختم ہو جائے۔ ایسے بھی خیال بنانے والے تھے، لیکن جب کبھی غلطی سے اس کا سامنا ہو جاتا تھا
तब लोग उससे नजर भी नहीं मिला पाते थे। फिर वो मुस्कुरा के चली जाती थी। उसकी एक सहेली थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी, वो कभी भी अकेली नहीं देखी गई, जब भी देखी गई अपनी उसी सहेली के साथ। एक दिन ऐसा आया जब वो किसी को नहीं दिखी। अब सब हैरान, कहाँ गई, क्यों नहीं आई, आज का दिन खराब हो गया, वगैरह वगैरह। मगर किसी की भी हिम्मत न हुई कि कुछ पता कर सके। उसकी सहेली तो आई थी, मगर लोग उससे भी क्या पूछते और उसे कारण क्या बताते। जब वो पूछती कि क्या काम है, लोग कैसे बताते कि क्या काम है, लोग कैसे बताते कि उसे देखा नहीं इसलिए दिल नहीं लग रहा है, लोग कैसे बताते कि दिन खराब हो गया आज। उसकी सहेली ने देखा और महसूस किया कि लोग आज मुझे कुछ ज्यादा ही घूर रहे हैं। फिर बड़ी जल्दी ही उसे ये एहसास हो गया कि लोग किसे ढूंढ रहे हैं। फिर वो भी मुस्कुराने लगी और अगले दिन जब लोगों को वो जुल्फे एक बार फिर दिख गईं, तब लोगों की जान में जान आई। अब लोगों को लगा कि क़यामत आने में अभी देर है, अभी जिंदा रहने के कुछ दिन और बाकी हैं, अभी कुछ दिन और इन जुल्फों को देखना नसीब में है। इधर लोगों ने राहत की सांस ली, उधर वो जुल्फों वाली कुछ खामोश सी दिखाई दे रही थी। मुस्कुरा तो रही थी मगर आज वो बात नहीं थी। फिर दोपहर के बाद वो मुस्कुराहट वापस आ गई। तब लोगों को तसल्ली हो गई कि सब ठीक है। और फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। वो आती थी, वो जाती थी, लोग उसे देख के आहें भरते रहते थे। धीरे धीरे कुछ लोगों ने हिम्मत करके उससे बात करना शुरू किया। तब लोगों ने पाया कि अरे ये तो बात करती है, हम बिना वजह घबरा रहे थे। इस तरह कुछ लोगों के लिए आसानी हो गई। दिन में एक दो बार उसका सामना हो जाता था तो मुस्कुरा के बातें हो जाया करती थीं, क्योंकि लोग कहते तो क्या कहते और लोग कुछ कहते नहीं थे, इसलिए वो भी सिर्फ मुस्कुरा के ही रह जाती थी। मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो उसका फायदा भी हुआ। वो अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की कुछ मुझ पर फिदा जैसी हो गई। अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ। मैं और उस जुल्फों वाली के बीच नैन मटक्का शुरू हो गया। हम दोनों छिप छिप के एक दूसरे को देखते रहते और फिर से देखने की कोशिश करते रहते। जब हमारी की नज़र अचानक उससे मिलती थी तो वो मुस्कुरा देती थी। तब मैं बड़ी हैरत में पड़ जाता था कि इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है। फिर मैं कोई भी राय न बनाकर सिर्फ मुस्कुराने में ही भला समझता था और इस तरह एक जान पहचान बन चुकी थी। ये बात बाकी चाहने वालों को अच्छी न लगी, मगर वो करते भी तो क्या। उनके अंदर इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि जाके उस लड़की से बात करते। मैंने वो हिम्मत दिखाई थी, इसलिए ही मुझे ये नज़दीकी हासिल हुई थी। बाकी लोग तो सोचते थे कि कोई उस लड़की को उनके लिए थाली में परोस के लाएगा और वो उसे ख्याली पुलाव समझ के खा लेंगे। लेकिन वो तो एक जीती जागती लड़की थी। लोगों को जब कोई रास्ता न दिखा तो वो मेरे के आसपास मंडराने लगे। इसी बहाने उन्हें वो लड़की मुस्कुराती हुई दिख जाती थी। मगर कुछ लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता था कि वो मेरे लिए मुस्कुराती थी, इसलिए उन लोगों ने मुझको भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ने तो मुझसे दोस्ती कर ली। ऐसे लोग जब मुझसे मिलते तो पहले जुल्फों वाली का हाल पूछते। अब उन्हें एक ठिकाना मिल गया था। जिस दिन वो दिखाई नहीं देती थी उस दिन मुझसे पूछा जाता था। अब मैं एक तरह से मशहूर होने लगा। हालांकि मेरे लिए ये कोई खुशी की बात नहीं थी। मेरी तो बस एक दो बार बातें हुई थीं और लोगों ने समझा कि बात कुछ और है। लोगों ने मुझको भड़काया कि वो हिंदू है। तब मैं कहता कोई बात नहीं, मुझे तो बस इतना दिखता है कि वो खूबसूरत है। लोग जब देखते कि तबरेज उनकी बातों में नहीं आ रहा है तब वो दूसरी तरह की बातें करना शुरू कर देते, जैसे अरे ये लड़की ठीक नहीं है, देखो अगर किसी अच्छे खानदान से होती तो यूं मटक मटक के चलती भला। तो मेरे पास इसका भी जवाब होता था, अरे मियाँ अब वो लड़की है, खूबसूरत है, वो नहीं मटकेगी तो क्या आप मटकेंगे। फिर सब हंसने लगते थे और मुझसे उस जुल्फों वाली की खूबसूरती को एक बार फिर गौर से देख लेता था और मन में कहता था खूबसूरत तो हैं आप और अदा भी है, इतना मुस्कुराती हो, इरादा क्या है। उधर दूसरी तरफ से मुस्कुरा के ही खामोश जवाब मिलता था,
क्या बताएं साहब, आपकी इस हौसले भरी नज़र का असर हो गया है हम पर, वरना लोग तो नज़रें चुरा के मिलते हैं हमसे। एक आप ही हैं जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है, बस इतनी सी बात है। और फिर मुस्कुरा देती है। इस तरह सब ठीक चल रहा था। दुनिया समझती थी कि मेरे और उस लड़की के बीच कुछ है, मगर ऐसा था नहीं। ये मुझको भी पता था और उस खूबसूरत जुल्फों वाली को भी पता था। मगर एक बात थी कि दोनों हम एक दूसरे को देख के मुस्कुराते जरूर थे। यही बात लोगों को सोचने पे मजबूर कर देती थी, जबकि मैं इसी बात से खुश था कि चलो, जिस लड़की से लोग नज़र मिलाने से डरते हैं वो लड़की मुझे देख के मुस्कुराती तो है, इतना क्या कम है। उधर वो लड़की ये सोच कर खुश होती थी कि चलो, इन डरपोक नज़र चुरा के देखने वालों के बीच कोई तो हिम्मत वाला है, और देखता भी है तो मुझे ही मुस्कुराना पड़ता है, वरना ये तो देखता ही जाए। बाकी जो कुछ था मेरे और उस जुल्फों वाली की नज़रों के बीच ही था। नज़र के इस खेल में जब तक नज़र न मिले तो चैन कहाँ, इसलिए हम एक दूसरे से नज़र मिला ही लेते थे। और अब तो ये नौबत आ गई थी कि हमें बाकी लोगों की नज़रों का ख्याल रखना पड़ता था, क्योंकि जब इन दोनों की नज़र आपस में मिलती थी तब कई लोगों की नज़र हम पे टिकी होती थी। मगर हम अगर दुनिया को देखते तो एक दूसरे को कब देखते, इसलिए दोनों दुनिया की परवाह किए बिना एक दूसरे को देखते रहते और मुस्कुराते रहते थे। हालांकि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ मुस्कुराहट का रिश्ता था। वो भी सिर्फ इतना कि दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते थे, बस। अब हम दोनों की नज़र जब भी मिलती तो हम दोनों को पता चल जाता था कि हम दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर मुस्कुराहट का आना तो लाजमी है। सब अच्छा चल रहा था। अब तो वो लड़की हंसने भी लगी थी। अब जब वो चलती थी तो अपनी सहेली से बातें करते हुए हंसती रहती थी, फिर हमारी की तरफ पलट के देखती थी और मुझको भी मुस्कुराने की वजह दे देती थी। हम दोनों को खुश रहने का एक बहाना मिल गया था। फिर 2 दिन बीत गए, वो नहीं दिखी। इस बार उसकी सहेली भी नहीं दिख रही थी। अब सब परेशान, सब मुझसे पूछते कहाँ है वो। मैं कहता नहीं पता। फिर तीसरे दिन उसकी सहेली दिखी। अब मुझसे न रहा गया, मैंने जाकर उसकी सहेली से पूछ ही लिया। उसकी सहेली मुझको देखते ही रो पड़ी। रोने की वजह पूछने पर पता चला कि वो लड़की अस्पताल में है। अब मैंने अस्पताल पहुंचने की वजह पूछने की ज़रूरत न समझी, बस इतना पूछ लिया कि किस अस्पताल में है, और सीधा उस अस्पताल में पहुंच गया। मुझको डर तो था कि उसके घर वाले देखेंगे तो सवाल करेंगे, मगर दूसरों के सवालों के डर से उसके अस्पताल में पड़े होने पर भी न जाना तो ठीक नहीं था न, इसलिए मैं अंदर चला ही गया। मगर अस्पताल का नज़ारा तो कुछ और ही कह रहा था। वहाँ पुलिस भी थी, लोग भी जमा थे, मामला गंभीर लग रहा था। मैं भी वहाँ पहुँच गया। मैंने उसे दूर से ही देख लिया। वो अस्पताल की सफ़ेद चादर में लिपटी हुई थी। सिर्फ चेहरा दिख रहा था उसका, बाकी सब कुछ सफ़ेद था। उसका सिर भी सफ़ेद पट्टियों से लपेटा गया था। मुझको देख के वो एक बार फिर से मुस्कुराना चाह रही थी, मगर इस कोशिश में उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने उसके पास जाकर उससे बात करना चाह रहा था, मगर तभी पुलिस और लोगों ने मुझे रोक दिया। ये देखकर उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर आंसुओं की धार बहने लगी। मुझको लोगों से पता चला कि उस लड़की को दहेज की लालच में जलाकर मारने की कोशिश की गई थी, मगर बदनसीब बच गई। मैं इजाज़त लेकर उसके पास गया। मैं उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो सफ़ेद चादर में लिपटी बेबस सी अस्पताल के बिस्तर पे पड़ी थी। उसके माथे से ऊपर उसका पूरा सिर पट्टियों से लिपटा हुआ था। आज उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं पा रही थीं, वो बस बह जाना चाह रही थीं। उसे भी महसूस हुआ कि मैं उसकी जुल्फों को ढूंढ रहा हूँ। ये ख्याल आते ही उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वो जी भर के रो लेना चाह रही थी, क्योंकि आग की लपटों ने उसकी खूबसूरत और लहराती जुल्फों को जला दिया था। उस खूबसूरत लड़की की खूबसूरत जुल्फों को दहेज की नज़र लग गई थी, और अब वो मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। तब मैंने पुलिस और बाकी लोगों की परवाह किए बगैर
उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, परेशान मत हो, तुम मेरी नज़र में अभी भी उतनी ही खूबसूरत हो। तब उसकी नज़र मुझसे कुछ इस तरह मिली जैसे वो पूछ रही हो, लेकिन मेरे बाल। तब मेरी आंखें भी छलक आईं और फिर मैंने उसके हाथ को कुछ इस तरह दबाया जैसे वो उसे भरोसा दिलाना चाह रहा था कि तुम्हारे बाल फिर से आ जाएंगे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आप हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए, सुनने के लिए आपका शुक्रिया।